1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 2 कोरिन्थियंस 7 चैप्टर 2 वर्सेस से लेकर 16 वर्स तक। प्रोवर्ब्स 22 चैप्टर 23 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय 2 वचन से 16 वचन और नीति वचन 22 अध्याय से 23 अध्याय 22 अध्याय और 23 अध्याय हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हम चाहते हैं कि हम अपने अंदर हर एक सोच का कब्जा तेरे वचनों के अधीन कर दे। तेरा वचन हमारी सोच बनने दे। हमारी सहायता कर परमेश्वर, हमारी मदद कर पवित्र आत्मा। हमें बंधुआई से छुड़ा। तेरा वचन हमें आज़ाद करता है और वचन के अंदर महिमा है। ये महिमा हम में से दिखने लगे। नासरी यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा, हम ये होने के लिए मांगते हैं कि हम में तो ये वचनों को फिट एंड फिक्स कर, हमें ऑर्डरलीनेस में लेकर आ, हमें व्यवस्थितपन में लेकर आ, जिसमें परमेश्वर हमको देखना चाहता है उसमें हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 कोरिन्थियंस 7 चैप्टर 2 वर्स से आगे पढ़ेंगे। रिसीव अस, वी हैव wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man. I speak not this to condemn you, for I have said before that ye are in our hearts to die and live with you. Great is my boldness of speech toward you, great is my glorying of you. I'm filled with comfort, I'm exceeding joyful in all our tribulation, for when we were come into Macedonia, our flesh had no rest, but we were troubled on every side. Without were fightings, within were fears. Nevertheless, God that comforted those that are cast down comforted us by the coming of Titus, and not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you, when he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me, so that I rejoiced the more. For though I made you sorry, for with a letter I do not repent, though I did repent, for I perceive that the same epistle hath made you sorry, though it were but for a season. Now I rejoice, not that ye were made sorry, but ye sorrowed to repentance. For ye were made sorry after a godly manner, that ye might receive damage by us in nothing. For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Sorrow of the world worketh death. 11th verse से आगे पढ़ेंगे। For behold, this self same thing that ye sorrowed after a godly sort, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge. In all things ye have approved yourselves to be clear in this matter. Wherefore, though I wrote unto you, I did it not for his cause that had done the wrong, nor for his cause that suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear unto you.
Therefore, we were comforted in your comfort, yea, and exceedingly the more joyed we for the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all. For if I have boasted anything to him of you, I am not ashamed, but as we speak all things to you in truth, even so our boasting which I made before Titus is found a truth. 15th verse से आगे पढ़ेंगे. And his inward affection is more abundant toward you, whilst he remembereth the obedience of you all, how with fear and trembling ye received him. I rejoice therefore that I have confidence in you in all things. दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय 2 वचन से आगे हम पढ़ेंगे. पौलुस का आनंद. 2 वचन से आगे 16 वचन तक. हमें अपने हृदय में जगह दो. हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा. मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार है. मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ. मुझे तुम पर बड़ा घमंड है. मैं शांति से भर गया हूँ. अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ, क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे. बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी, तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी. हालेलुया. और न केवल उसके आने से, परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी. उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ. क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसे कि पहले पछताता था. क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था. अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया. हालेलुया. क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुँचे. हालेलुया. 10 वचन से आगे. क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है. हालेलुया. और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है. अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और दंड देने के विचार उत्पन्न हुआ. और देखिए ये वचन और एक बार पढ़ेंगे हम. 11 वचन. अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितना उत्साह, प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ. तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो. हालेलुया. हालेलुया. 12 वचन से आगे. फिर मैंने जो तुम्हारे पास लिखा था वह न तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वह परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाए. इसलिए हमें शांति मिली.
हमारी इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हरा भरा हो गया है। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। जब उसको तुम सब के आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, हालेलुया, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू जीसस। ये वचनों को पिता हमारे जीवन में भरपूर और बहुतायत से फसलदायी बना, नासरी यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं। यीशु मसीह के नाम में, नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन।